The topic of the day is electric field intensity on the equatorial line of electric dipole. So we have an electric dipole in which negative Q and positive Q charges are separated by distance 2L. Then the distance from the center up to this negative Q will be small l. And similarly, the distance of positive Q from the center of the dipole is also small l. Clear? Now the question arises that what is this equatorial line? तो देखिए equatorial line क्या है? ये एक ऐसी line है which is perpendicular to the axial line of the dipole. So this is the axial line और axis of the dipole. तो इस axial line पे अगर हम इस तरह से perpendicular draw करते हैं, then this is called as a equatorial line. ठीक है? तो इस equatorial line के ऊपर हमने find out करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है. देखिए this position, let us consider here we are placing some test charge Q naught. That this is point C at we have placed the test charge Q naught or unit positive charge. You can say positive 1 भी write कर सकते हैं. Instead of this we can take at positive 1 Q naught की जगह unit positive test charge we are having. Clear? तो देखिए इस पॉइंट को या इस पोजीशन को हम ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन भी बोलते हैं. ठीक है? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रॉड BROAD ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. ठीक है? This is the broad side on position. This position is called as broad side on position, or you can say it is the equatorial line. ठीक है? इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट. अब आपके पास टू चार्जेस है नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q. ये दोनों चार्जेस इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. तो देखिए दिस इज द नेगेटिव चार्ज हियर, दिस इज पॉजिटिव यूनिट चार्ज. तो इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ये नेगेटिव Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस. So this will be the direction of electric field intensity due to this negative charge. ये negative charge उस test charge को अपनी तरफ attract करेगा. It means this is the direction of electric field intensity experienced by this test charge due to this negative charge. Clear? Similarly, this is the positive charge and it will repel the unit positive charge. ये पॉजिटिव Q इस Q नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. इसका मतलब पॉजिटिव Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी लाइक दिस. तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कुछ एंगल के ऊपर एक्ट कर रही हैं. तो पहले तो हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. डायरेक्शन हमें पता चल गई है. सो हियर यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज. ठीक है? पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है. कहां पर? टेस्ट चार्ज रखा हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. तो कितनी आ जाएगी? दैट इज E पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q upon square of the distance between the charges. Now here it is positive Q and here it is Q naught. So we need this distance. B से लेके C तक का डिस्टेंस चाहिए. तो ये कहां से आएगा? So let this distance from the center of this point C is small r. तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके we can find out the value of this side of triangle. That will be equal to r square plus l square under root. समझ रहे हो बात को? This is L and here it is R. तो hypotenuse you can find out. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. तो hypotenuse is equal to under root of square of this
plus square of this side. Clear? So we have this under root r square plus l square. It is under root here. ठीक है जी, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन कौन सी है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग बी से जा रहा है किस तरफ को? सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्लियर? सो वी कैन से इट इज डायरेक्टेड अलोंग पॉइंट बी सी। ये यहां पर आपने कोई नेम रखना है डी, वो भी रख सकते हैं। इट इज अलोंग पॉइंट बी डी। ठीक है, तो अलोंग बी डी, तो बी से डी की तरफ इसकी डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने नेगेटिव क्यू की वजह से देखना है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है। तो आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू एस, तो नेगेटिव क्यू की वजह से तो दैट इज कॉल्ड एज ई नेगेटिव एंड इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब की बार नेगेटिव q नॉट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है E नेगेटिव। क्लियर? समझ गए बात को? सो वी नीड दिस डिस्टेंस अगेन AC। तो अगेन वी आर हैविंग द सेम ट्रायंगल, दैट इज इट can be calculated by using Pythagoras theorem. So it is under root r square plus l square. तो फिर से वही वैल्यू आ गई। So we can write it as r square plus l square. ठीक है, अच्छा जी, होल स्क्वायर भी है। वैसे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसकी डायरेक्शन कौन सी है? इट इज डायरेक्टेड अलोंग सी से आ रही है इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, तो वैसे C से A की तरफ को आ रहा है। तो वी कैन से अलोंग CA। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर आप ध्यान दें, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव और E नेगेटिव क्या है? सेम है। तो फ्रॉम equation 1 and 2 implies that E positive is equal to E negative. E negative is the magnitude. So E negative is equals to कितना है जी? 1/4 pi epsilon naught Q upon हाँ जी R square plus L square। क्लियर? क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, तो E पॉजिटिव और E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बोथ आर एक्टिंग एट सर्टेन एंगल विद ईच अदर। दे आर एक्टिंग एट सर्टेन एंगल विद ईच अदर, बट बोथ आर एक्टिंग एट एंगल, ठीक है, विद ईच अदर, विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हैं और वो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों कुछ एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पैरेललोग्राम वी विल फाइंड दैट दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E वेक्टर। ठीक है, सो E वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब ये एंगल अगर थीटा है, देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? इट इज थीटा। ठीक है, सिमिलरली दिस एंगल इज थीटा, देन हियर इट इज आल्सो एंगल थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब है E पॉजिटिव और E नेगेटिव कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा विद ईच अदर। Then using parallelogram law of
वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यहां कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू E and it is equal to under root, you know very well, it is R vector is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos of theta. Theta is the angle between A and B. Here it is angle between E positive and E negative is 2 theta. Clear? So we can say it is E positive square plus E negative square plus 2 E positive E negative cos of 2 theta. So here this is E positive and E negative. But we have find out in equation number 3. We are having this thing here that E positive is equal to E negative. Clear? So since you have this thing E positive is equal to E negative, so therefore E is equal to under root. हाँ जी, जहां जहां E नेगेटिव लिखा वहां E पॉजिटिव करते जाएंगे। सो इट इज E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 2 E पॉजिटिव इंटू E पॉजिटिव क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बिकम E पॉजिटिव स्क्वायर, साथ में क्या रहा cos of 2 थीटा। क्लियर? नाउ दिस E पॉजिटिव एंड E पॉजिटिव हो गया 2E पॉजिटिव स्क्वायर, हियर इट इज दिस, बाद में कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमारे पास आ गया, it implies E is equals to 2E positive square plus 2E positive square cos of 2 theta. Now from here we can take common 2E positive cos square, 2E positive square. So it is equals to under root 2E positive square, इधर हमारे पास बन रहा है 1 plus cos of 2 theta. Clear? So it is 1 plus cos 2 theta. Now we know very well that the value of this 1 plus cos 2 theta, but let's say this is equation number 4, you can say it, but 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square 2 theta by 2. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिला 2 cos square theta. Clear? So we will substitute this value in equation number 4. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, therefore equation 4 implies here it is E is equals to हाँ जी under root 2E positive square, क्लियर, 1 plus cos 2 theta हमारे पास है 2 cos square theta के इक्वल, सो वी कैन से 2 cos square theta। तो देखिए यहां पर 2 2 4, उसका अंडर रूट निकालेंगे 2 आएगा, E पॉजिटिव स्क्वायर का अंडर रूट E पॉजिटिव, cos स्क्वायर का अंडर रूट cos थीटा। क्लियर? सो वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल्स टू 2E positive cos of theta. So this is the final value of electric field intensity magnitude. किसका magnitude है? Of electric field intensity due to electric dipole on its equatorial line. अब देखिए ध्यान से, इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें यहां पे तो किधर को देखो, इस तरफ को, ठीक है। तो फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो लेट इट इज एज इट इज। देखिए अब इसके आगे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E पॉजिटिव या E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी वन ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में से निकाल लीजिए cos थीटा और यहां पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E। सो फ्रॉम ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए BOC, BOC ट्राइंगल में से हमने निकाला
cos of theta is equal to, देखिए cos theta base upon hypotenuse. Base is here L and hypotenuse is this, so we can say L upon, it is under root, so r square plus L square, I will write it as raised to power 1 by 2. Clear? So this is cos theta, say it is equation number 6. Now we will substitute the value from equation number 3, here it is, and equation number 6 किसमें पुट कर रहे हैं, 5 में. So put equation 3 and 5, इक्वेशन 3 और 5 को पुट करना, 3 और 6 को पुट करना है इन इक्वेशन 5. तो 3 और 6 को पुट करेंगे 5 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 5 इंप्लाइज, इक्वेशन 5 से हमें कुछ मिल रहा है, दैट इज E इज इक्वल टू 2. E positive, magnitude of E positive is, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon, here it is R square plus L square. This is E positive, and the value of cos theta is that we have calculated, so into L upon R square plus L square raised to power 1 by 2. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. Here it is Q into 2L. Here it is R square plus L square multiplied with R square plus L square raised to power 1 by 2. तो यहां से हमारे पास आ गया E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2L divided by R square plus L square raised to power 3 by 2. But you know very well this Q into 2L is equal to P. So we can say, but Q into 2L is equal to electric dipole moment P. So we can write it as E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught small p divided by R square plus L square raised to power 3 by 2. So this is the magnitude of the electric field intensity due to electric dipole on its equatorial line. इसकी डायरेक्शन देखना चाहे तो देखिए, इसकी डायरेक्शन है along this. You can say this is along negative x axis. So we can say along negative x axis, ये negative x axis के along. क्लियर? अब हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. सो वी विल डिस्कस अबाउट द केस इफ R इज वेरी ग्रेटर देन L. बोलने का मतलब दैट इज शॉर्ट डाइपोल और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अगर ऐसा होता है तो ये जो L है यहां पर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा. देन R square plus L square raised to power 3 by 2 is approximately equal to, L square is negligible here, so R square raised to power 3 by 2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ Q. It is approximately equal to R cube. So therefore यहां से हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. It is here small p. Small p is the electric dipole moment. So P upon R cube. This is for a short electric dipole. And again from here we can say E is inversely proportional to R cube in case of a short dipole. अच्छा चलिए ये तो बात हो गई. अब एक और चीज हम जनरलाइज करते हैं. हमने एक्सियल लाइन के अलोंग स्टडी किया था. एक्सियल लाइन के अलोंग हमने जब स्टडी किया था तो यहां पर हमारे पास आया था 2p. क्लियर? 2p into R. इसका मतलब अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए देखें, शॉर्ट डाइपोल में ये बात हम डिस्कस कर सकते हैं. फॉर शॉर्ट डाइपोल यू कैन नोट दिस थिंग. फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में E axial was equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon R cube. This was
2p upon r cube and E equatorial अभी हमने फाइंड आउट किया 1/4 pi epsilon naught and it is here p upon r cube यहां पर था 2p इधर है p so from these two we can say that E axial is equal to twice of E equatorial तो ये न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा in case of short dipole the electric field intensity on axial line is equal to twice of the electric field intensity on the equatorial line. So this is about the electric field intensity on equatorial line due to electric dipole. So till next topic, bye bye.